Good morning, class 4. Today I am going to teach you rest of the story of this chapter. If you remember in last video I have taught you half of this chapter. According to your half yearly portion, chapter 5, let us start. Standard 4, subject English literature, chapter 5, Up the Mountain. Once again, do clear that author of this story is Johanna Spyri. Author of this story is Johanna Spyri. Now today we will read page number 31 and 32. If you remember, then we had already completed this chapter. ये चैप्टर जो था अप द माउंटेन जोहाना स्पायरी के द्वारा, ये हेडी नाम की एक बच्ची की थी जिस जो मतलब कैसे माउंटेन पे कैसे वो चढ़ रही है, अपनी आंट जो है उसकी आंट जो है उनके साथ वो कैसे कैसे ट्रेवल कर रही है। फिर रास्ते में उसको पीटर नाम का एक गोदड़ मिला जो कि बकरी वगैरह पालता है, गोदड़ उसे कहते हैं, ठीक है। उसकी आंटी का नाम था डेटे। फाइनली वो लोग पहुंचते हैं अपने दादाजी के पास, जो हेडी के जो दादाजी हैं उनके पास पहुंचते हैं। Guys, I have told you to read this story carefully in last video, so I am going to only dictate in Hindi. इस स्टोरी की मैंने आपको बोला था कि लास्ट वीडियो में कि आप इसे अच्छी तरह से रीड कीजिए एट होम, तो इसलिए मैं आई होप आप सबने रीड किया होगा, स्टडी किया होगा, इसलिए मैं इसको आप सिर्फ इन शॉर्ट में हिंदी में बता देती हूँ, बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट आवर पोर्शन ऑल्सो एज सुन एज पॉसिबल। ओके गाइस, सो इसमें जो बताया गया है कि ये जो डेटी है वो हेडी नाम की बच्ची के साथ माउंटेन पे चढ़ती है और रास्ते में उसको गोदड़ मिलता है पीटर नाम का, ठीक है। तो फाइनली वो लोग उसके दादाजी के पास पहुंचते हैं। अगेंस्ट द हंट ऑन द साइड लुकिंग टुवर्ड्स द वैली, अंकल हैड पुट अप द सीट। हियर ही वाज सिटिंग, हिज हैंड्स ऑन हिज नीज, क्वाइटली लुकिंग आउट व्हेन द चिल्ड्रन एंड द गोट्स क्लाइम्ड इनटू व्यू। हेडी वेंट स्ट्रेट अप टू द ओल्ड मैन एंड सेड, गुड इवनिंग ग्रैंडपा। So what is the meaning of this? He asked gruffly, gazing at her from under his bushy eyebrows. Hetty started steadily back at him. Meanwhile, Dete had come up, as Peter put down the bundle and went off with the goats. I wish you good day, uncle, said Dete. I have brought you Tobias and Adelaide's child. What has she to do with me? Asked the old man curtly. The child is to remain with you, Dete answered. I have done my duty by her for these 4 years and now it is your time for you to do yours. यहाँ तक का मतलब ये है कि जब डेटे उस बच्ची को, हेडी नाम की बच्ची को दादाजी के पास लेकर आई, तो दादाजी को जब उसने वेलकम किया, उसने विश किया, तो फिर दादाजी को बहुत ही आश्चर्य लगा। उसने बोला कि मेरे किस रिश्ते से तुम मुझे गुड ग्रैंडफादर बोल रहे हो। तो फिर डेटे ने बताया कि ये आप ही का बच्चा है, इसको 4 साल मैंने पाला है। जब इसकी माँ ने इसको छोड़ दिया था, वो जब डेथ कर गई थी, तो फिर मैंने इसको 4 साल मैंने इसको पाला है। अब ये आपकी ड्यूटी है कि आप इसे पालो, ठीक है। Now that is it, said the old man, as he looked at her with a flash in his eye. And when the child begins to flit after you, what am I do to with her then? That is your retorted Dete. I had to put up with her without complaints when she was left on my hands as an infant. Now I have to go and look after my own earnings, and you are the next to kin of the child. If you refuse to keep her, do with her as you like. You will be answerable if harm comes to her. As he uttered these last words, uncle rose from his seat and said in the furious voice, be off with you this instant, and do not let me see your face again in a hurry. Dete did not wait to be told twice. Goodbye to you then, and to you too, Hetty, she called, turning quickly away and descending the mountains at a running pace. Tete was not very happy about what she was doing, for the child had been left in her case by her mother. She quieted herself, however, with the thought that she would do something for the child when she earns plenty of money. इसका मतलब ये है, बच्चे जब दादाजी ने रिफ्यूज कर दिया बच्चों को रखने के लिए, तो फिर डेटे ने बोला कि अब ये आपकी जिम्मेदारी है, 4 साल मैंने इसको रखा, अब आप इसके साथ क्या करते हो, डेट इज योर प्रॉब्लम, ये आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, अगर कुछ गलत होता है, कुछ मिस हैपनिंग होती है बच्चे के साथ, तो फिर जिम्मेदारी आपकी होगी, तो फिर मैं आपको ब्लेम करूंगी अगर बच्चे के साथ कुछ गलत होता है तो, ठीक है। ऐसा बोलते हुए फिर वो चलती बनी और दादाजी ने जब ये लास्ट वर्ड सुना तो वो काफी गुस्सा में उन्होंने बोला कि तुम जाओ, आज के बाद मुझे कभी अपना फेस मत दिखाना। फिर डेटी चल पड़ी, लेकिन फिर वो पीछे पलट के जब उसने देखा उस बच्चे को, तो उसे बहुत ही बुरा लगा। उसे बुरा लग रहा था कि मैंने ऐसा गलत काम क्यों किया, 4 साल मैंने इसे देखा इसके, और फिर अब मैंने इसको
यूं ही क्यों लेफ्ट, क्यों छोड़ दिया। लेकिन फिर डैडी ने सोचा कि जब मैं मेरे पास पैसे हो जाएंगे, जब मैं बहुत पैसे कमाने लग जाऊंगी, तो फिर मैं उस बच्चे को फिर से वापस ले लूंगी और फिर मैं उसको वापस लेके फिर उसकी मैं देखभाल करूंगी, उसको मतलब केयर टेकर फिर वापस मैं ले लूंगी अपनी, फिर मैं उसे देखूंगी। तो दिस इज योर स्टोरी कंप्लीटेड गाइस। नाउ लेट अस डू एक्सरसाइजेस। राइट ट्रू और फॉल्स। हेडी एंड हर आंट लिव्ड इन द माउंटेन। ट्रू फॉल्स है अकॉर्डिंग दिस चैप्टर, यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ। ये बहुत इजी है, आपको खुद करनी है। अगर आपसे हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी, और ये क्वेश्चन आंसर है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ही आपको करवाऊंगी। अनलेस एंड अनटिल गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।